شاعر کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شاعر کی ترتیب کی کتاب نکالیں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے۔ تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، ہم آج صبح پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں۔ لینٹ کے اس تیسرے اتوار میں خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں، اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، آیا آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 168 168۔ یسوع دے نال پریت جولائی کون آسانو روکے۔ God
یہ دن مجھے اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ مسیح یسوع جو میری اور آپ کی خاطر ان دکھوں میں سے گزرا،
अगर मैं और आप इस दुनिया में, इस समाज में रहते हुए दुखों में से गुज़रते हैं मसीह के वसीले से, मसीह की वजह से, तो फिर मुबारक है। आए हम दुआ मांगें। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई करे, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी करें हमद व सना के लिए, इन साज़ों और आवाज़ों के लिए, क्वायर के लिए, और हम सब इस वक्त जो होंठों की कुर्बानी उसके हुजूर गुजरानते हैं, खुदावंद से अपने हुजूर कबूल फरमाए। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई कर सकती है। तुम्हारे साथ हो, हमें बरकत दे और हमें अपने साथ चलने की कुव्वत और ताकत दे, ताकि तेरे साथ चलते रहें और तेरे से जलाल पाते रहें, यीशु के नाम में आमीन। शालकुल कन्वेंशन गीतों की किताब आपके हाथों में है। गीत नंबर 14 निकालें। हुन वक्त सलीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने दा। Thank
इस मुल्क में अमन हो, हमारे मुल्क में वो लोग जो परेशानी की हालत में हैं उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाए और उनकी परेशानी खुशी में बदले। इसलिए ज़रूरी है मौजूदा हालात के लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमारे लोग बाहर हैं, बैरून मुल्क हैं, हम भाई इकबाल बाली के लिए, जोएल बख्श साहब के बेटे हैं, उनके पोते की शादी हुई पिछले दिनों, हम उनके ख़ानदान के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उनकी शुक्रगुजारियों के लिए। और जिन घरों में शुक्रगुजारी की इबादतें हो रही हैं, इन तमाम शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुजूर हम रखते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद सेंट जॉन चर्च के एक एक घराने पर, एक एक ख़ानदान पर, एक एक फ़र्द पर अपनी बरक़ात नाज़िल फरमाए। दुआ मांगे, कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी किया कीजिए। खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, ख़ास तौर पर इस लम्हा के लिए जब हम सब तेरी बारगाह में तेरे खुदावंद मौजूद हैं। अब आप आसमानी गुज़रे हफ्ता के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तमाम नेमतों बरकतों को याद करते हैं तेरे खुदावंद जो तेरी तरफ से हमें मिली। हम नहायत शुक्रगुजार हैं तेरे खुदावंद। इस वक्त तेरी बारगाह में सब यकदिल होके अब आप आसमानी तुझसे मांग लेते हैं उनकी हालात के लिए, खुदा तमाम सियासी पस मंज़र के लिए। अब आप आसमानी दुआ मांगते हैं अपने हुक्मरानों के लिए कि तुम उनको दानिश और फहम अता कर, ताकि तेरे खुदावंद इस पाक मर्जी से ये मुल्क तरक्की पाए, खुशहाली पाए। तेरे खुदावंद बैरून मुल्क जितने भी अजीज़ मौजूद हैं उनकी सलामती, उनकी हिफाजत, उनकी बढ़ोतरी के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं। तेरे खुदावंद जितनी मदद सराई हुई उसके लिए तेरे खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी मदद सराई, सारी बड़ाई तेरे नाम के लिए है। तेरे खुदावंद वायद को बरकत दे, साज़ों आवाज़ों को बरकत दे, कलीसिया में मौजूद हर एक शख्स के लिए बरकत और फजल की दुआ मांगते हैं। तेरे खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए अब आसमानी को फजल ठहरा, बरकत ठहरा, मखसूस ठहरा। आज का कलाम हमारे लिए बाइस बरकत हो। बाकी मंदा तमाम इबादत के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं। तेरे खुदावंद हमारे दिलों की मुरादों को तू जानता है, उन्हें कबूल कर। सब कुछ मांगने से तेरे प्यारे बेटे खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में आमीन। आगे थोड़ी जगह है, अगर नहीं तो आप ऊपर चले जाएं, इस बेंच पे जगह है, ये बेंच खाली, आप यहाँ आ जाएं। आज का जो पहला विरद है वो ज़बूर नंबर 19 है। ज़बूर नंबर 19 निकालें। नौवीं आयत से 14वीं आयत। आज का जो पहला विरद है, पहली तिलावत है ज़बूर नंबर 19, 9वीं आयत से 14वीं आयत, सफ़ा नंबर 538, 538। अगर आप में से कोई कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना चाहे, अच्छा बेटा ठीक है, आप पढ़ लें। ज़बूर 19, 9वीं आयत से 14वीं आयत, 538 सफ़ा। आज का दूसरा विरद, पहला करंथियों पहला बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत। करंथस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, पहला बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत, सफ़ा नंबर 154। ख़वातीन में से कोई खातून पढ़े, चले। आज का दूसरा विरद, पहला करंथियों पहला बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत। जब तक इश्तिहारात होते हैं इस पैसेज को गौर से पढ़ लें, तसल्ली से पढ़ लें आप दोनों। फिर इसके बाद हमने एक गीत गाना है, गीत नंबर 17। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आज के जो कलाम के हिस्से हैं उनके साथ ये मुतलका सारे गीत हैं। गीत नंबर 17 लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, ये गाएंगे। फिर इसके बाद हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान दूसरा बाब और 13वीं आयत से 22वीं आयत सुनेंगे। पादरी डेल्सन ये वाला पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 83, 83।
अज़दवाजी ज़िंदगी तेरे खौफ में रह कर बसर करें और तुझसे बढ़ते पाए। खुदा बाप, बेटे और रूह उसके नाम से। खुदावन का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावन के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बिल्कुल बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शरीं हैं। नीर उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनके मानों का अजर बढ़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदा को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ए खुदावन, ए मेरी चट्टान और मेरी फिदिया देने वाले। आमीन। आज का दूसरा ग्रंथियों पहला ग्रंथियों पहला बाब 18वें से 25वें। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि हकीमों की हिकमत को नस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहाँ का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि ये इस मनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चनाचा यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर आवर है। खुदावन के ज़िंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। आमीन।
और यसू यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और ज़राफ़ा की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में से कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यसू ने जवाब में उनसे कहा, इस मक़दस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मक़दस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मक़दस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुक़द्दस और उस कौल को जो यसू ने कहा था यकीन किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। रूहुल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतूस पलतूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुश ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम इस वक्त तेरा कलाम सुनने के लिए तेरे पाकरू की रहनुमाई चाहते हैं। हम सबको अक्लदान और शर्फ अहमत अता फरमा ताकि हम अपना पूरा ध्यान पूरी तवज्जो तेरे कलाम की तरफ दें, ताकि हमारी शख्सी और ख़ानदानी ज़िंदगियों में निखार पैदा हो। बेशक हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब तेरी कुव्वत हमें मिलती है फिर उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कलाम के इन हिस्सों के लिए और आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते और इल्तिजा फरियाद करते हैं, तो अपने खादिम के मुंह में अपना कलाम डाल ताकि इस कलाम के वसीले से सरतपा हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोच में, हमारे रवैयों में तब्दीली आए और हम दूसरों के लिए ठोकर का नहीं बल्कि बरकत का सबब ठहरे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबके आने के लिए, खुदा के घर में बैठने के लिए, हमदो सना करने के लिए और इस वक्त पूरे ध्यान के साथ खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आज का दिन और आने वाले दिन आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। मुश्किलात इस दुनिया में हैं, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन मुझे और आपको खुदा का शुक्र अदा करना है, क्योंकि लिखा कि हर बात में करो शुक्र, खुदा की मर्ज़ी है तुम्हारी बाबत मसीह यीशु में। अगर ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ ही चलती रहे तो फिर ये ज़िंदगी नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जो बच्चे कामयाब हुए हैं, अभी तो चंद एक स्कूलों के रिज़ल्ट निकले हैं, सेंट एंथनी का रिज़ल्ट निकला है। मोज़ेस आप खड़े हों ज़रा। ये जवान 7वीं क्लास में गया, पास हो गया, इसीलिए तालियां बजाएं। दूसरे का भी रिज़ल्ट जब आएगा तो फिर करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, सेंट एंथनी का रिज़ल्ट आया, हम टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये बच्चे तालीम और इल्म हासिल करें, तरक्की करें, हमारे लिए खुशी की बात है। मौजूदा हालात में आप जानते हैं कि बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, है ना। मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था
हमारे इर्द गिर्द के जितने मुल्क हैं किसी में 9 रुपये फ़ी यूनिट है, किसी में 11-12 रुपये से कम दूसरे मुल्कों में है। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया। लेकिन हमारा मुल्क इतना अच्छा है कि हमारे मुल्क में 1 यूनिट 53 रुपये कुछ पैसे की है। कितने की? और यूनिट ऐसे जाती है। चर्च के सारे इंतज़ाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप लोग इस चर्च के मालिक हैं, आप लोग इस चर्च के खर्चे बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हमने भी सोचा कि अब हम सोलर सिस्टम लगाएं, वो सस्ता पड़ता है। बजाय कि हम लाखों बिल अदा करें, एक ही वक्त में कुछ लाखों खर्च करके, तो सोलर सिस्टम का इंतज़ाम करें। बहुत सारे लोगों ने किया है। ये बिल्कुल चर्च के पीछे ये सनी साहब का घर है, पादी विक्टर खोखर का घर है, उनके बच्चों ने सोलर सिस्टम लगाया। जब मैं गेट में अंदर दाखिल होता हूँ तो इनके सोलर सिस्टम में मेरी नज़र जाती है। इंतखाब के यहाँ मैंने देखा, तो बताना ये चाह रहा हूँ कि हम शुरू करेंगे सिस्टम। लेकिन इसमें जब हमने सोचा था उस वक़्त तो बहुत कम रेट थे। अब चूँकि ज़्यादा रेट बढ़ गया तो हम सोलर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि लाख रुपये खर्च होंगे उस पर। कुछ पैसे हमारे पास हैं जो हम खर्च कर रहे हैं, आपके ही हैं, वो भी हमारे नहीं हैं। और आपके पैसे सेफ़ हैं, मौजूद हैं, वो खर्च करेंगे। लेकिन ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। हम उन ख़ानदानों के लिए शुक्र करते हैं जिस काम में हमारी मदद करेंगे। इसलिए मेरी ये दुआ है कि ये जो सोलर सिस्टम, बिजली का इंतज़ाम है, आप हैरान होंगे कि मैं पहली दफ़ा जब बैरून मुल्क गया, आज से तकरीबन कुछ 36 साल पहले, 36 ईयर्स, कितने साल पहले? पहली दफ़ा मैं जब बाहर गया तो जिस घर में खाना खाया उनकी छत पे मैं गया तो वहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ था। 36 साल पहले साइप्रस में। हमारे यहाँ तो तस्वर भी नहीं था ना इसका। 36 साल पहले वहाँ सोलर सिस्टम था। तो जब मैं छत पे गया मैंने कहा इन्होंने छत को क्यों बिगाड़ा हुआ है, वो जगह ही नहीं है गुजरने की कि बंदा। तो फिर मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि वो बिजली बनाता है। घर में जितनी बिजली आ रही है वो सोलर सिस्टम की वजह से आ रही है। तो इसलिए हम 36 साल पीछे हैं। वो मेरे देखने की बात है, मुमकिन है हमको 100 साल पीछे हों, लेकिन अब हमारी ज़रूरत बन गई है। हम गवर्नमेंट के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने थोड़ी इस बात में आने वाले वक्त में रियायत करेंगे वो कि जितनी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत बढ़ जाती है ना, डिमांड बढ़ती है, उतनी ज़्यादा चीज़ आ जाती है, फिर सस्ती भी हो जाती है। जितनी ज़्यादा चीज़ आएगी उतनी थोड़ी सस्ती भी होगी। सो इसलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके लिए लगा रहे हैं। कभी कभी झटका लगता है, जब बिजली चली जाती है तो डर होता है कि पीए सिस्टम ना ख़राब हो जाए। आपके घरों में ऐसा हुआ होगा, जब बिजली जाती है यकदम आती है चली जाती है, किसी की वॉशिंग मशीन जल गई होगी, किसी की फ्रिज, हमारी मोटर बड़ी जल्दी जल जाती है, पता नहीं क्या वजह, झटका लगता है इसको जो पानी वाली है। हर घर में ऐसा है। तो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए हमने एक दूसरे की और ख़ास तौर पर इंतज़ामिया की मदद करनी है। हम इंतज़ामिया के शुक्रगुज़ार हैं कि वो ऐसी बातें आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए सोचते हैं। फिर हमारा ये जो महीना है बड़ा अच्छा खूबसूरत महीना है जिसमें हमारी रफ़ाकत ज़्यादा होती है। गुड फ्राइडे पे हम खाने का इंतज़ाम करते हैं, फिर सनराइज सर्विस पे करते हैं, वो भी आपके पैसे होते हैं, आपके होते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन सारे कामों को दुआ में याद रखें ताकि हम आगे बढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। एक बार फिर उन ख़ानदानों के लिए हम खुदा को शुक्र अदा करते हैं जो अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके घर में लाते हैं। जिन घरों में इबादतें हो रही हैं हम उन घरों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगर आप में से किसी के दिल में ये बात आ जाए कि उनके घर में दुआ और इबादत की ज़रूरत है, आएँ, हम खुशी से आएँगे और आपके साथ घर में ख़ानदान के साथ बैठकर दुआ इबादत करेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। आज के जो हवाले हैं खूबसूरत हवाले हैं। पहले आपने देखा होगा कि कई दफ़ा जब आप बोर्ड पे पढ़ते हैं साहिफुल अंबिया के हवाले होते हैं, पुराने हदनामे के ज़बूर का हवाला कम लिखा जाता है, बहुत कम लिखा जाता है। आज 19 ज़बूर खोले ज़रा, ये मेरी और आपकी सोच में तब्दीली लाएगा। जो गीत हम पहले गा चुके हैं
हम उस गीत के लिए भी शुक्र करते हैं। कोयर ने बड़ा अच्छा गाया, हुन वक्त सलीब उठाने दा दुनिया विच धूम, हुन जागिए नींद, हुन लफ्ज़ ही नहीं आते आपको, हुन जागिए नींद। तो ये इसके बारे में मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि किसी ने कहा कि जो है ना वक्त ये आपका है, गुजर जाता है जल्दी से, वक्त आपका है, खा इसको सोना बना दे, वक्त ना हमें खुदा देता है, सुन रहे, वक्त आपका है, खा आप इसको सोना बना दे या सोने में गुजार दे, ये आपकी मर्जी है। तो अब हमारे पास ये वक्त है, लेंट सीज़न। हम उन सारे लोगों के लिए शुक्र करते हैं जिन लोगों ने दरख्वास्तें की कि उनके लिए दुआ की जाए, क्योंकि दुआ हालात को बदल देती है। बैन मुसरत के लिए भी हम दुआ करते हैं, खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मरकज़ फ़िदा, उनका बेटा इंग्लैंड में था, वहाँ उसकी डेथ हुई। हम उनके ख़ानदान के लिए अफसोस का इज़हार करते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये हादसात, ये डेथ्स, ये मुझे और आपको याद दिलाते हैं कि हमने भी इस दुनिया में ज़मीनी ज़िंदगी को बसर करके जाना, लेकिन उसके बाद ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, फिर अबदी ज़िंदगी है जिसके लिए मुझे और आपको तैयारी करनी है, और ये वक्त है जो खुदा मुझे और आपको दे रहा है। 19 ज़बूर निकालें। मुख्तसर सी बात करूँगा, लेकिन आपने इस हवाले को अपनी शख्सी और ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए नोट करना है। खुदा का खौफ पाक है। 9वीं आयत, खुदा का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खौफ क्या चीज़ है? डर है, लेकिन खुदा मुझे और आपको प्यार करता है। खुदा का खौफ पाक है। किसी ऐसी चीज़ से ना डरें जो आपकी अबदी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकती, उससे ना डरें। खुदा का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है, और खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। जो हुक्म, जो अहकामात, जो 10 अहकाम, 10 कमांडमेंट्स, उस पर को भी आपने घर में जाके ज़रूर पढ़ना है। वो बिल्कुल रास्त है, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। सोना और कुंदन 2 चीज़ें हैं। सोने से कुंदन बनता है। खाम माल कभी आप देखें, उसके नीचे आग जलाई जाती है, जलाते ही रहते हैं, जलाते रहते हैं, उसको आग में से गुजरना पड़ता है, तकलीफ़ में से गुजरना पड़ता है। और जब तक जलाने वाले को जो आग जलाता होता है उसमें अपनी शक्ल नज़र नहीं ना आती शीशे की तरह, तब तक वो उसके नीचे आग लगाता रहता है। मुझे और आपको भी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बहुत होती हैं। मैं और आप कभी कभार खुद ही आजमाए जाते हैं। कभी कभी इस दुनिया में रहते हुए वो आजमाइश जो आप पे मुझ पे आती है इसका पता नहीं चलता, लेकिन वो मुझे और आपको सिखा के बहुत कुछ जाती है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, वो सोने से बल्कि कुंदन से भी ज़्यादा पसंदीदा है खुदा का खौफ, क्योंकि खुदा का खौफ हिकमत बख्शता है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी है। इतनी मिठास है उसमें। असली और खालिस जो शहद है ना, कभी इसको चखें। इसलिए यहाँ शहद की मिसाल दी गई है। नीज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है। ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हैं, इनसे मुझे और आपको आगाही मिलती है। हमें सोचने का मौका मिलता है, उनको मानने का अजर बढ़ा है। जो लोग मानते हैं खुदा के हुक्म को, जो लोग मानते हैं इन सारी चीज़ों को, जो लोग उसके खौफ को मानते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा अजर है, इनाम है, तोहफा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। मेन ट्रुथ है आज की, मरकज़ी आयत है आज की। खुदा का बंदा, कितने ज़बूर हैं लिखे हुए? तकरीबन 150 ज़बूर, पूरे 150। सारे दाऊद ने नहीं लिखे,
खुदा के बंदा मूसा ने भी लिखे। सारे एक बंदे के नाम पे नहीं है, किसी के नामों के साथ मंसूब किया गया है। कहीं पे आसफ लिखा हुआ है, कहीं कुछ बहुत, और पढ़ा करें कभी ज़बूर, उनके नामों से मंसूब किया गया है। ये मरकज़ी आयत हमारे लिए है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? कभी कभार हम नहीं जानते। मूसा भी कहता है खुदा का बंदा, दाऊद भी कहता है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? सवाल है, तो मुझे पोशीदा ऐबों से पाक रखा है। खुदा मुझे नहीं पता चलता जो मेरे पोशीदा गुनाह हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता, तू मुझ पर अयां कर। ये ज़बूर की किताब जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, जो पूरी दुनिया इसको मानती है, वो कहता है मैं नहीं जानता, तू मुझे इनसे पाक कर, तू मुझ पर यहाँ कर, खोल दे ताकि मैं ये ना कर सकूं, क्योंकि मुझे पता नहीं। तो अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। कुछ चीज़ें हैं जो हम बड़ी बेबाकी के साथ करते हैं, कहते हैं वो फलां बंदा बड़ा बेबाक है भाई, खुली गल कर देता है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बेबाकी से की जाती हैं। कई दफ़ा लोग, उन लोगों को आप कहते हैं ये इससे ज़रा डरना भाई, ये क्या है, अब बोले खैर है, क्योंकि वो ठीक नहीं होता, वो बेबाक आदमी होता है, तो जाते जाते भी कुछ कर जाता है, उसे डर नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बयान आप बेबाकी में करते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका पता नहीं चलता। इसलिए खुदा का बंदा इकरार करता है और वो कहता है तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, कंट्रोल कर, वो मुझ पर गालिब ना आए। ऐसी चीज़ें बाज़-औक़ात इंसान पे गालिब आ जाती हैं, वो मुझ पे गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा, वरना मैं कामिल नहीं हो सकता। आए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे बेबाकी की खताओं, गलतियों, कसूरों से तू बाज रख, वो मुझ पे गालिब ना आए। अगर गालिब आती नहीं तो मैं कामिल नहीं हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। कई दफ़ा खुदा मुझे और आपको, हालात मुझे और आपको बड़े गुनाह से बचा लेते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। इसीलिए कई दफ़ा अपने दुआ में सुना होगा, जब हम किसी के लिए दुआ करते कहते खुदा तू हमें हर तरह के ख़तरात से बचा कर महफूज रख। वो ही ऐसे ख़तरात से बचा सकता है। इंसानी ज़िंदगी के लिए ये शरीयत, ये तौरात, ये अहम चीज़ें हैं जिसका यहाँ जिक्र किया गया। इन पर गौर करना, इन पर ईमान रखना, इन पर अमल करना, कानून पर अमल करना सबसे बड़ी बात है जो हमारे मुल्क में नहीं है। हम कानून पे अमल नहीं करते, कानून बनाते ज़रूर हैं लेकिन अमल नहीं करते। मेरे मुंह का कलाम, खुदा का बंदा कहता है मेरे मुंह का कलाम जो मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। इसलिए आखिरी दुआ में अपने कलमात बरकत में सुनागा कि खुदा यीशु मसीह की जो मोहब्बत है दिलों और ख्यालों को महफूज रखे। ये दो चीज़ें बड़ी अहम भी हैं, ख़तरनाक भी हैं। इसलिए हर रोज़, हर वक्त मुझे और आपको इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। दिल और ख्याल, मेरे मुंह का कलाम, मेरी ज़बान से निकले हुए अल्फाज, मेरे दिल से अंदर से जो ख्याल निकलते हैं, आए खुदा वो तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। आए खुदावंद मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, तू मुझ पर रहम कर, तू मुझे सिखा। जब तू ऐसा करेगा तो फिर वक्त जो खुदावंद तूने मुझे दिया है वो मेरी ज़िंदगी में उसमें उसके वसीले से ताज़गी आएगी और बुराई के ख़तरात से तू मुझे बचा लेगा। इसीलिए करंथस की कलीसिया में जब बात चल रही थी अक्लमंदी की, बात चल रही थी हिकमत की, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा का खौफ हिकमत का, तो खौफ, डर हिकमत का शुरू है। अक्ल, दानिश और फहम हमें इससे मिलती है।
لیکن جب کرنتھس کی کلیسیا کے نام خدا کے بندہ نے کلام کیا وہاں لوگ حکمت پر زیادہ عمل کرتے تھے۔ حکمت کیا ہوتی ہے بھائی؟ گڈو کی بیٹھے ادھر جو حکیم لوگ ہیں نا وہ حکمت رکھتے ہیں۔ حکمت، عقل، وہ جتنی جڑی بوٹیاں یہ وہ ساری چیزیں حکمت سے آتی ہیں، اور اس وہاں کے لوگ کرنتھس کی کلیسیا کے لوگ حکمت پر زیادہ عمل کرتے تھے، حکمت کو اہم سمجھتے تھے، وہ دوسری چیزوں کو دوسرا درجہ دیتے تھے اور جو حکمت ہے اس کی بات کرتے تھے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی۔ ابھی آپ صلیب پہ بڑے پیغامات سنیں گے پورا مہینہ، پھر گڈ فرائیڈے، صلیبی کلمات جو خداوند یسوع مسیح کی زبان سے نکلے۔ یہ صلیب جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، گلے میں لٹکاتے ہیں، اچھا بھی لگتا ہے، ہمیں خوبصورت لگتا ہے جب روڈ پہ جاتے ہیں، جس گاڑی میں صلیب کراس لگا ہوتا ہے یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ کسی مسیحی، اور اس کا ایمان ہے صلیب پر کہ وہ راستے میں، آمد و رفت میں، جہاں کہیں جائے گا خدا اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی، وہ مجھے اور آپ کو سنبھال بھی لیتا ہے، بچا بھی لیتا ہے۔ اور اسی لیے ہم سفر میں اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے کے جاتے ہیں، کوٹ کی جیب پہ ہم لگاتے ہیں کراس۔ چرچ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری آن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں کے لیے جو حکمت رکھنے والے لوگ تھے، خدا کے کلام میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کیونکہ اس وقت کے جو حکمت والے لوگ تھے، عقل والے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسی موت ہے صلیب والی، یہ تو لعنتی موت ہے، یہ اچھی موت نہیں ہے، یہ تو مجرم کو دی جاتی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن وہ صلیب پہ چڑھ گیا، اس نے یہ موت گوارا کر لی تاکہ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ تو میرے اور آپ کے بچاؤ کا واحد حل یہی تھا، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا اس نے حکیموں کی جو حکمت اس کو نیست کر دیا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ کبھی کبھار ہم بڑے ہی عقل مند بنتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ میں زیادہ عقل کی بات کر سکتا ہوں، لیکن میری اور آپ کی عقل جو ہے نا، خدا کے کلام میں دوبارہ دیکھ لیں، دنیا کی جو عقل ہے، میری اور آپ کی جو عقل ہے، وہ بے وقوفی ہے۔ کلام میں لکھا، میں نہیں کہہ رہا، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ سخت فکرہ ہے، برداشت کرنا اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اس وقت آج کے دور میں جو منادی کی جا رہی ہے وہ کچھ بے وقوفی کی منادی بھی ہے۔ تو اس بے وقوفی کی منادی کی وجہ سے جب میں اس میں چلا جاتا ہوں تو اس بے وقوفی کی منادی کی وجہ سے خدا مجھے بچانا چاہتا ہے کہ میں اس بے وقوفی کی منادی کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے نجات پاؤں، رہائی پاؤں، آزادی پاؤں، چھٹکارا پاؤں۔ صرف اس کو صلیب کو ڈیکوریشن پیس نہ بناؤں، یہ کوئی فیشنیبل چیز نہیں ہے۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ اور کئی دفعہ یہ بے وقوفی کی منادی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی میں نجات یافتہ ہوں، میں نجات یافتہ ہوں، میں خدا کے بہت قریب ہوں۔ اور پھر گھر والے بھی کہتے ہیں اے بہت خدا دے قریب یہ
कलाम में लिखा है, मैं खुद नहीं कह रहा, मुझ पे कोई इल्ज़ाम ना लगा देना भाई, सुनने दोबारा पढ़ने लगाऊं। अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान जो लाने वाले लोग हैं वो इससे निजात पाए, रहाई पाए, छुटकारा पाए, आज़ाद हो जाएं। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं, यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। ये ठोकर का बायस है सलीब दूसरे लोगों के लिए, इसीलिए तो सबसे पहले वो कहता है सलीब उतारो, ये नहीं लगने देंगे। मरी गए हैं ना आप लोग, जब आप मार रोड पे जाते हैं ना, तो जो मेन रोड के ऊपर बड़ा चर्च है उसके ऊपर सलीब नहीं लगी हुई थी, अंदर और बाहर लगी हुई थी, अंदर और सामने, लेकिन टावर के ऊपर नहीं थी। एक खुदा का बंदा वहाँ गया, उसका नाम पादरी इजाज़ अनायत था, वहाँ उसकी पोस्टिंग हुई। जाते ही इस खुदा के बंदे ने वहाँ पे क्रॉस बनवाई और ऊपर लगाई, लेकिन हलचल मच गई, इसलिए कि वहाँ दुनिया का हर शख्स जाता है। उन्होंने कहा सलीब उतार दें, ये नहीं रखनी। उसने कहा कि ये सलीब जिसकी सलीब है लग गई है, अब ये उतरनी नहीं है, आप में हिम्मत है तो उतार लें। दलेरी की बात है, लगी हुई है, आज भी जाएं देखेंगे आप। सलीब इसलिए कि उन लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो हिकमत रखते हैं, ठोकर लगती है उन्हें देख के। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर, गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीही खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी, देखें सख्त लफ्ज़, खुदा की बेवकूफ़ी आदमी की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। उसकी कमज़ोरी भी ज़ोरावर है, और जो उस पर ईमान रखते हैं, जिसकी मुनादी करते हैं, उनकी भी कमज़ोरी ज़ोरावर है, इसलिए कि खुदा उन्हें हिम्मत, जुर्रत और ताकत अता कर देता है। यीशु मसीह दुनिया का सबसे ज़्यादा हलीम शख्स था। जब दुनिया में था, जिस्म रखता था, अल्लाही ज़ात भी थी और इंसानी ज़ात भी थी, लेकिन उसको गुस्सा भी आया। खुले जो हवाला पादी साहब ने पढ़ा, गुस्सा बहुत आया। कब आता है? जब आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ को काम हो। यीशु मसीह काने गलील की शादी में थे, वहाँ मुजज़ा भी किया, और वहाँ से निकले लोग उस पर ईमान भी लाए। लेकिन यहूदियों की चूँकि ईद आ रही थी, ईद फसा, और खुदा यीशु मसीह भी यरूशलेम में चले गए। यीशु मसीह खुद यहूदी था, तो फसा में चले गए। ईद की तैयारी हो रही थी। ये फसा ये दायमी है, क्योंकि बनी इस्राएल को आज़ादी मिली थी। गुनाह की गुलामी से भी आज़ादी मुझे और आपको मिल जाती है, और असीरी से भी आज़ादी मिल जाती है। और बनी इस्राएल को असीरी से, मिस्र से आज़ादी मिली थी। और उसने, यीशु मसीह ने हैकल में जब वो गया, बैल, भेड़, कबूतर बेचने वाले सराफा लोग वहाँ बैठे पाए। भाइयों, दोस्तों, साथियों, हमसायों, गौर से सुनना। यीशु मसीह ने हैकल में, जो खुदा का घर था, वहाँ इन सारी चीज़ों को देखा, अंदर बैल, भेड़, कबूतर। तो खुदावंद यीशु मसीह को थोड़ा गुस्सा भी आया। कोई चीज़ नहीं थी उसके हाथ में, रस्सी थी, रस्सियाँ पकड़ी, उन्हीं की रस्सियाँ पड़ी होंगी, और रस्सियाँ इकट्ठी करके खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ा सा बना लिया ना। और सराफों को, जो कारोबार करते थे, ताजर थे, नकदी उनकी बिखेर दी, उनके तख्ते उलट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा कि इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर
न बनाओ, ना इसे नापाक करो। कभी सुबह मैं सुबह जब उठता हूँ देखता हूँ तो हमारे लोग जिनके घरों में डॉगी हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, तो चर्च की दीवार आके उनको खड़ा करते हैं। इतने अच्छे लोग हैं, चर्च की दीवार के साथ वो बाहर नहीं लेके जाते, इधर चर्च की दीवार के साथ। लम्हा फिक्रिया है, यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, कोड़ा बनाया, उनको बाहर निकाला, कहा ले जाओ यहाँ से, मेरे बाप के घर को तजारत का घर न बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, कलाम में लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। ये पहले से लिखा हुआ था। तो यीशु मसीह को उस वक्त जब हैकल पे गया तो उसने फिर इसको एक्ट किया, अमल में लाया। देखा उसने, बस यहूदियों ने जवाब में से कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? क्यों करता है भैया काम? तेरे पास कोई अख्तियार है, कोई नोटिस है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा, बना है, क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मक़दस की बाबत कहा था, अपने बारे में कहा था कि मुझे सलीब दे भी दो, मर भी दो, दफन भी कर दो, तो मैं तीसरे दिन मुर्दों में से। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था। बाद में याद आती हैं बातें, मुझे और आपको भी बाद में याद आती हैं बातें, वक्त पे हम गौर नहीं करते। वक्त को अपने हाथ से ना जाने दें। वक्त आपका है, इसको सोना बना दें, जी हाँ, सोने में गुजार दें। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने तो कहा था ये बात। उन्होंने किताब मुक़द्दस उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। कब किया भाई? कब किया? जब यहाँ किसी की मेमोरियल सर्विस होती है ना, बड़ी सच्चाई से झूठ बोलते हैं लोग, जो उस बंदे ने नहीं किया तब वो भी बताते हैं, तो मर जाता है तो फिर याद आता है। उसके मुंह में कभी कहा करे, उसके मुंह पे कहा करे कि हाँ तो जो बात कर रहा है इसका मैं यकीन करता हूँ, करती हूँ। मर जाता है, फिर मेमोरियल सर्विस करते हैं, फिर उसमें खड़े होते हैं, फिर इतनी बातें कर जाते हैं, इतनी बातें कर जाते हैं, फिर उन्हें याद आता है। इन लोगों को भी बाद में याद आया कि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा था सच था, यकीन किया और कहा कि ये सलीब हमारे लिए, ईमान लाने वालों के लिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की। आइए हम इस कुदरत खुदा का शुक्र अदा करें और दुआ मांगें। आप में से कोई भी चंद अल्फाज में छोटी सी दुआ करें। खुदा उनका शुक्र अदा करें इस कलाम के लिए, और वो सोलर सिस्टम जिसको हम चर्च में लगाने को हैं, इसके लिए ख़ास दुआ करें ताकि खुदा वसाइल मुहैया करे, क्योंकि वो यहोवा यरी है और सब कुछ मुहैया करता है। कोई भी दुआ कर सकता है। की सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र जाते हैं, तेरे बंदा के लिए जिसके वसीला से आज का कलाम हम पर पहुंचा, उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम सब ने जिन्होंने ने आज के कलाम को सुना, हम सब के लिए पैसे बरकत हो, हम तेरे नाम में पढ़ते जाए, रूहानी तरक्की पाए और ईमान की दौलत से माला मार दे। आप आज जमात के साथ हो, जितने लोग बीमार हैं एक दिन को छूना और शफा देना, आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ मांगते हैं अपने बेटे हमारे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन।
बड़ी आजिज़ी इंकिसारी हलीमियत रोकने के साथ हम सब अपने आप को भी तेरे हजूर रखते हैं, इन हदियों को नजरानों को भी, तो हम सबको भी इन हदियों को भी अपने हजूर कबूल फरमा। हमारी खताओं गलतियों मुश्किलों को मुआफ़ कर, देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइलों को सब इनकी रोटी पानी को बरकत डाल। ये दिन जो खरायत के दिन है, जो देने के दिन है, इनमें हम सब तेरी खिदमत के लिए, तेरे कामों के लिए, दूसरे लोगों की तरक्की के लिए, तेरे दिए वैसे जब हम देते हैं तूने अपने हजूर कबूल फरमा। बेशक हम नालायक, फिर भी हम बड़ी दिलेरी के साथ तेरे वसीले से ही तेरे पास आ सकते हैं। इस अजय की तकदीस कर अपने जलाल की इस्तेमाल कर। बड़ी दुआ मिन्नत और शुक्रगुजारी के साथ दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमात बैठ जाए। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गुलों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदावंद तेरा भी जलाल है, मुबारक है वो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पाक। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र छाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसको दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, मुल्क के हाकिमों पर, आने वाली नई हुकूमत पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, तमाम मसीही लीडर्स रहनुमाओं पर रहम कर, हमारे डायसिस ऑफ रायबन पर रहम कर, चर्च ऑफ पाकिस्तान, चर्च इन पाकिस्तान, हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, मायूस ज़दा लोगों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नया अहद का ये गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीतने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ सब मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गोनागो और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह आलूदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत
मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें, कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून की शराकत में शरीक होकर रूहानी ताजगी पाएँ। खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने खुदा अपना बदन कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेक़ीमत मक़बूल कुरान प्रार्थना से किया है और गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम उन बख्शों के लिए जो प्यार से बाहर हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुज़ूर में गुज़राते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें बदल बख्श ताकि हम इस जहान में हम शक्ल ना बने, पर शक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और लोग तेरी नेक और कानून मर्जी सीखे और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमा बरदारी करें कि हम आकर तेरी आसमानी बादशाही तेरे साथ मुकद्दस में खुश बनाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह के साथ वाहिद खुदा जीता और सजन करता है। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ और जिन जिन इलाकों में मुश्किलात हैं, सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।